بینکرز ایسوسی ایشن کی جانب سے تحریک انصاف کی قیادت سے ملاقات ہماری ہوئی اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ ایک پرنسپل ایشو ہے اس وقت، نہ صرف پاکستان کی تمام صحافتی برادری کا بلکہ پاکستان کے ہر شہری کا، کیونکہ آرٹیکل 19 جو پاکستان کے ہر شہری کو بولنے کی آزادی دیتا ہے، رائے دینے کی آزادی دیتا ہے، سیاسی اوپینین رکھنے کی آزادی دیتا ہے، اس اوپینین کو ایکسپریس کرنے کی آزادی دیتا ہے، اس کو کوئی بھی حکومت کچل نہیں سکتی ہے۔ تو اس پر یہ جو پی کا قانون لایا جا رہا ہے، قانون تو پہلے موجود ہے، اس میں جو ترامیم یہ حکومت لے کر آ رہی ہے انتہائی متنازع، ہائیلی کنٹروورشل، اور یہ سیاہ ترامیم ہے جن کو متعارف کروانے کی کوشش کی گئی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ جس طرح سے متعارف کروانے کی کوشش کی گئی، کہا جاتا ہے قانون کے زبان میں کہ جسٹس رشڈ جسٹس کرشڈ، اگر آپ انصاف کو ہنٹر لے کے بھگائیں گے تو انصاف کچلا جائے گا۔ تو انہوں نے انصاف کو، آواز کو کچلنے کی کوشش کی۔ ہم نے سب سے پہلے آج سے 3 دن پہلے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب سے ملاقات کی، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب سے ملاقات کی۔ ہم نے ان سے گزارش کی کہ آپ خدارہ کنسلٹیشن کے پروسیس کو، مشاورت کے پروسیس کو وسیع کریں، براڈر کریں۔ آخر ایسی کون سی افتاد آ گئی ہے، کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ آپ نے اس کو ابھی کے ابھی ہبڑ دبڑ میں راتوں رات اس سیاہ قانون کو منظور کروانا ہی کروانا ہے۔ اگر آج نہیں ہوگا تو کل ہو جائے گا۔ آپ حکومت ہے، ریاست ہے، طاقت ہے، آپ کے پاس نمبر گیم پوری ہے، لیکن کم از کم ایک بھرم تو آپ رہنے دیں کہ ڈیموکریسی کے اندر جو اسپرٹ ہے وہ کیسے برقرار رکھی جاتی ہے۔ اور انہوں نے اس بات کو اعتراف کیا اس کا کہ ہاں ہماری غلطی ہے کہ ہم آپ سے مشاورت نہیں کر سکے، اور انہی کے کہنے پر ہم نے آج سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اور آن انٹیریئر اس میں شرکت کی۔ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ہماری باقی صحافتی تنظیموں کی، ان کی طرف سے ایک لیٹر وہاں پہ موصول ہوا، ہم اینکرز کی طرف سے وہاں ہماری نمائندگی تھی اور ہم نے وہاں کچھ تجاویز رکھنی تھی، لیکن 30-35 منٹ کے پروسیس کے اندر انہوں نے بلڈوز کر دیا اس قانون کو، اور انہوں نے فوری طور پہ اس کو منظور کروا لیا۔ حالانکہ یہ وہ قانون ہے جس کا اطلاق چند 100 چند ہزار چند لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں پاکستانیوں پر ہوگا، جس کے ہاتھ میں فون ہے، کوئی انفارمیشن سسٹم ہے، کوئی ڈیجیٹل گیجٹری ہے، ڈیوائس ہے، وہ اب اس کے زمرے میں حکومت، ریاست اس کو لا کے اور اس کو انتقام کا نشانہ بنا سکتی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری اس کاز میں ہم آواز ہوں گے۔ ہماری باقی تنظیمیں بھی، ہم وکلاء سے رابطے میں ہیں، ہم سول سوسائٹی سے رابطے میں ہیں، ہم ہیومن رائٹس کی تنظیموں سے رابطے میں ہیں، اور ہم اس کو انشاءاللہ وسیع کریں گے۔ اگر تحریک انصاف کے زمانے میں ایک قانون لایا جا رہا تھا پی ایم ڈی اے کا، ہم کھڑے ہوئے اس وقت بھی، اس قانون کو اس حکومت نے واپس لیا۔ اس وقت افسوس کی بات آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، اسد کیسر صاحب سپیکر تھے، اور بلاول صاحب جو ہیں وہ اور شہباز شریف دونوں آزادی صحافت کے چیمپئن بن کے ہمارے پاس آتے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج انہی کی ناک تلے ایک قانون جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ لیتھل جو ہے اس کو پاس سینٹ سے ہو گیا، قومی اسمبلی سے ہو گیا، اور آج سینٹ سے بھی اس کو کروا کے ظاہری بات ہے وہ ایک قانون بننے جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینکر ایسوسی ایشنز کا وفد ہمارے پاس آیا تھا، ہم ان کے آنے کو بڑے قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کی ساری ریزرویشن کو بڑے غور سے سنا 45 منٹ، اور ان کی ساری ریزرویشنز میں بہت بڑی ایک پوائنٹ ہے، اور وہ یہی ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے نہ صرف یہ کہ رش کر کے جلد سے جلد لیجسلیشن کی جائے، جو کہ اس حکومت کا ایک طور امتیاز رہا ہے۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے چند ہی منٹوں میں یہ لیجسلیشن پاس کراتی ہے، بل آ جاتا ہے اسمبلی میں، اس کے ساتھ یہی کہا جاتا ہے کہ اس بل کو 1 گو میں کنسیڈر کرے، ساتھ ہی کہتا ہے بل پاس ہو جاتا ہے۔ اس وقت جس طریقے سے قدغنے لگانے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو کرمنلائز کیا جا رہا ہے کہ آئندہ کوئی بندہ فیک نیوز کے آڑ میں جس کو چاہے اس کو اٹھایا جائے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسمبلی کے فلور پہ بھی اس کی مذمت کی ہے، اس کے خلاف اسمبلی کے باہر بھی ہم نے احتجاج کیا ہے۔ ہم ان جرنلسٹوں کے ساتھ، اپنے میڈیا کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کے جائز حقوق ہے اس کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ یہ جو میڈیا ہے یہ اسٹیٹ کا چوتھا پلر ہے، اگر آپ اس کو کمزور کریں گے تو آپ ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ جلد بازی میں یہ قانون سازی کر رہے ہیں اور ان کا ورشن آپ نہیں سن رہے جس طرح باقی قوانین میں آپ نے نہیں سنا، بلکہ اس سے آپ ایک نئے اذیت میں لوگوں کو مبتلا کر رہے ہیں۔ واحد ایک میڈیم رہ گیا جو عوام کو دوسرا جو رخ ہے وہ دکھاتا ہے۔
2022 में, जबकि पाकिस्तान टीवी जो है, टेलीविज़न, वो अपनी अफादियत खो चुका है और लोगों के सामने जो प्राइवेट चैनल है या सोशल और डिजिटल मीडिया है उसके ज़रिए से हकीकत का पता चल रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें। इन क़वानीन के आड़ में लोगों के पास जो भी आवाज़ पहुंचती है आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसकी मजम्मत करते हैं और मीडिया वालों के साथ शाना बशाना खड़े, जिस फोरम में भी जाना हुआ हम उनके साथ इंशाअल्लाह ताला जानेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये ला पास भी हो जाए और ये उनको चैलेंज करे तो अदलिया से भी ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये सेटिस्फाइड होगा, इस पे अमल दरामद नहीं होगा। दूसरी बात ये मैं कहूँ, आज केपी हाउस में अली अमीन गंडापुर साहब ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। 20 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ ने शिरकत की, ज़्यादातर रिलीजियस पार्टीज़ थी जिन्होंने शिरकत की। उसका एलामिया भी इंशाअल्लाह ताला आपके पास आएगा और उसकी जो सारी कंसेंसस डेवलप्ड हो गई वो भी आपके पास आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और KPK की हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ और कुरम के इश्यूज़ पे एक कंसेंसस डेवलप की जाए ताकि एक लोगों का जो मसाइल है उसका एक सलूशन पॉलिटिकल हम निकालें। अपने लोगों के साथ आप लड़ नहीं सकते। अपने लोगों को बेदर करने से बचाने के लिए डायलॉग वाहिद तरीका है, उस पर इंशाअल्लाह ताला सारे पॉलिटिकल पार्टी की कंसेंसस हो गई है। वो आज सुबह 11 बजे से मीटिंग शुरू हो गई थी, 2:30 तक वो मीटिंग जारी रही। सारे उलमाए किराम ने और काबिरीन ने अपने अपने राय का इजहार किया है। इंशाअल्लाह ताला पूरी तफसील आपके साथ वो आ जाएगी। जी बिस्मिल्लाह। बस एक मिनट बात करते हैं क्वेश्चन। मैं सबसे पहले तो जो पीका एक्ट नेशनल असेंबली से पास हुआ है और फिर सेनेट में भी आज स्टैंडिंग कमेटी ने इसको अप्रूव किया है और लग ये रहा है कि ये जो है ना अभी जो इजलास शुरू होगा उससे पास करेंगे, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और इनका आगाज़ जो है ना मरियम नवाज़ ने पंजाब से किया था, जो आतंक इज़्ज़त के नाम से एक कानून पास किया और इसके ये उसका एक दूसरा शक्ल है। ये बुनियादी तौर पर जो कवानीन लेके आ रहे हैं ये मार्शल लॉ प्लस है, यानी जिस तरह मार्शल लॉ में बुनियादी हुकूक मुअत्तल होते हैं तो इस कवानीन के ज़रिए पार्लियामेंट जो है ना वो रिडंडेंट हो गया है, न असम्बली में बात कहीं पहुंचा सकते हैं, न खुल के बात होगी। और अभी जो हमारे जिस तरह बैरिस्टर साहब ने कहा कि जो एक ओपन तजज़िये होती थी, डिस्कशन होती थी, उसके ऊपर भी तमाम जो है ना इदारों को और तमाम जो टीवी चैनल्स को PTV 2 बनाया जाएगा। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हमें पता है कि ये जर्नलिज्म को दबाने के लिए और ख़ासकर सोशल मीडिया को दबाने के लिए ये सबसे ज़्यादा जो कुछ कर रहे हैं ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। हमें इनका अंदाज़ा है, हमने जो एंकर एसोसिएशन की वफद हमें मिला है, हमने ये इसको एश्योरेंस की है कि हम इसके ख़िलाफ़ मुल्क तहरीक में भरपूर साथ देंगे। इसके साथ साथ जो हम एक बना रहे हैं, एक अलायंस बना रहे हैं और हम 1-2 हफ्तों में इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ी तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखती हैं, जो इंटेलिजेंसिया है, जो लीगल पेटर्निटी बार एसोसिएशन है, मीडिया है, आप सबको बुलाएंगे और एक कौमी एजेंडा बनाएंगे। और इस कौमी एजेंडे में जो है ना हमने बुनियादी नुक्ता नहीं होगा कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपके साथ इस तरह हैं कि जैसे आप अपने साथ खुद हैं, यानी हम और आप इस मामले में एक है, भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएंगे। ये मुल्क जो है इस तरह नहीं चलाया जा सकता। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, मुल्क में इकॉनमी की सिचुएशन और मुल्क में अगर ये बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं तो इसके डट कर मुकाबला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना इस मामले में आपसे 2 कदम आगे होंगे इंशाअल्लाह। बैरिस्टर गौहर साहब, कल 28 को जो इजलास बुलाया गया है, क्या उसमें आप जा रहे हैं? जो हुकूमती कमेटी का इजलास स्पीकर ने बुलाया और आपको? नहीं, देखे जहाँ तक डायलॉग का ताल्लुक है हुकूमती कमेटी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी का, हमने ऐलान किया हुआ है, खान साहब की यही हिदायत थी। 7 दिन का टाइम दिया गया था इनको कि आप कमीशन बना ले, कमीशन का अनाउंस कर ले, फिर आगे जाके आपके साथ चौथी नशिश पे बैठेंगे। और हम कह चुके हैं कि हम हुकूमत के साथ हाय हलो के लिए नहीं बैठ रहे थे और ना ही हमने फोटो सेशन के लिए इनके साथ बैठना है, क्योंकि वो डायलॉग कॉल अप हुआ है, अभी तक हुकूमत ने ऐलान भी नहीं किया वो कमीशन का। लिहाजा कल की मीटिंग में हम शिरकत नहीं करेंगे, हमने इन्फॉर्म कर दिया है सेक्रेटरी को। सर, सेनेट की दाखिला कमेटी से PTI के सेनेटर ने इसको आगे बढ़ाने में ताउन किया है, तो ये PTI की पॉलिसी हमें नज़र आ रही है। और दूसरे इन बयानात से हमें दोहरा म्यार इसलिए भी नज़र आ रहा है क्योंकि गुज़श्ता जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी
फैसल मुश्तरका सेनेटर कौमी असम्बली फैसल सलीम उसमें शरीक हुए। ज़राए बता रहे हैं उन्होंने इनपुट भी दिया, मुशावरत भी सियासी रहनुमाओं से आपस में की। इतनी कुर्बतें हैं तो इसका मतलब है आपने खुलकर सपोर्ट किया। नहीं देखो, जहाँ तक आपने उसके चेयरमैन का किया, जो लॉ पास हो जाता है वो रूल ऑफ बिजनेस के मुताबिक उस कमेटी में जाता है जिससे वो रिलेट करता है। तो ये इंटीरियर मिनिस्ट्री में वहाँ गया है और ये गया हुआ इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ दी सेनेट में। वो फैसल सलीम हमारा सेनेटर था, हमने उसको शोकाज दिए हैं, शोकाज पे हम उसके खिलाफ प्रोसीड कर रहे हैं। वो अगर वहाँ आया था जॉइंट सेशन के वक्त पे तो वो अपोजिशन की तरफ ज़रूर आया था, नहीं तो उसके साथ कोई कंसल्टेशन हुई है, नहीं हमने उसको किसी कंसल्टेशन के प्रोसेस में शामिल किया। तो हम किसी भी सेनेटर को अच्छा नहीं समझते अगर वो इसके हक में वोट देता है। हमारे किसी कैंडिडेट ने इसके हक में वोट नहीं दिया। देखो, उसका ऑलरेडी हम शोकाज चूँकि दे चुके हैं तो हम एक्शन लेंगे। सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने आज कहा है कि मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ सकता। हम किसी को छत पे खड़े होकर आवाज़ नहीं दे सकते अगर वो नहीं चाहते इस अमल का हिस्सा बनने। हम तो देखिए, हुकूमत की तरफ से कमेटी का इजलास में शिरकत करेंगे। अगर ये अपना इजलास आप बुलाते हैं, यूनिलेटरली बुलाते हैं, तो इनकी मर्जी है, जहाँ बैठना चाहे, जहाँ इजलास करना चाहे। और शायद ऐसी स्टेटमेंट है हुकूमत की तरफ से, और ये डिलेइंग टैक्टिक्स है जिसकी वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ी, बल्कि एक मौका मिल गया था। कोशिश करनी चाहिए कि डायलॉग को आगे बढ़ा के लेके जाते, डायलॉग के ज़रिए से सारे मसाइल का हल ढूंढते, ये अनाउंस करते। लेकिन इनका अगर यही रवैया है तो हम तो कमेटी में नहीं जाएंगे। इनकी अपनी मर्जी अगर वो उन्होंने जो पब्लिकली आपके सामने कमिटमेंट किया था ना कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, यानी इनसे एक मुलाकात नहीं हो सकती, उसकी कोई पता नहीं किस किस्म की हुकूमत है कि एक मुलाकात जो एक सिंपल एक सुपरटेंडेंट को टेलीफोन कॉल करने की जरूरत होती है वो नहीं कर सकी, तो फिर आगे क्या हो सकता है? मिनिस्टर साहब, लास्ट ये बताइएगा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबाई सदारत से हटाया गया है, इसके पीछे क्या वही रीजन है जो बताई जा रही है? मरकज में भी तब्दीलियां हो सकती है, पंजाब नहीं। देखो, खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि मैंने अपने जो प्लेयर्स है वो मैं चेंज करता ही रहता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब की और बड़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो उनका खुद शायद मैसेज था जिसकी वजह से ये चेंज हुआ है। लेकिन एनीवेज को आगे देखते हैं। अली अमीन खान गंडापुर साहब वज़ीर आला तय हैं और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। खान साहब ने उनको पुलिस सपोर्ट किया है और खान साहब का एतमाद हासिल है। मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह करूँ, हम में से मैं हूँ, असद कैसर साहब से या कोई भी है, हम उस वक्त तक इस पार्टी में जब तक खान साहब का एतमाद है। ये खान साहब की पार्टी है, खान साहब ही चेयरमैन है, वो चेयरमैन तय हैं और रहेंगे। वो लीडर तय हैं, चाहे वो जेल में हो चाहे वो बाहर हो। जो वो करते, मैं पहले कह चुका हूँ, खान इज खान, ही ऑर्डर्स वी फॉलो। सर, ये कैप्टन के कहने पे नहीं, कैप्टन इज कॉलिंग द शॉट्स। देखिए, हम कल से मुलाकातें शुरू कर रहे हैं दो इश्यूज पे मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज के साथ। एक जो इलेक्शन कमीशन की जो अभी नई नॉमिनेशन होनी है, तकर्री होनी है, स्पीकर साहब की ये जिम्मेदारी है कि उसका जो लीगल प्रोसेस है वो शुरू करवाएं। अभी तक वो प्रोसेस शुरू नहीं है, हमें इस पर अफसोस है। हम दीगर पोलिटिकल पार्टीज को भी मिल रहे हैं इस पर भी, और आपके जो पीका एक्ट के हवाले से जो इन्होंने ये कानून पास किया है इसके हवाले से भी इंशाल्लाह हम दीगर पोलिटिकल पार्टीज को के हवाले से जिलापुरम के हालात को लेकर जिस तरीके से वहाँ एक इजलास किया गया, वहाँ जो अकाबरीन थे उनकी जानिब से बाहिबी मुशावरत से एक जरगा हुआ, उस जरगे पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो क्या यहाँ वफाक में जो कुछ अमन के हवाले से किया गया है, तो जहाँ अली अमीन गंडापुर केपी में नाकाम हुए हैं मुज़ाकरात कामयाब करवाने में, उस जरगे को कामयाबी से आगे बढ़ाने में, तो क्या यहाँ आज होने वाला इजलास कामयाब हो सकता है पुरम के हालात को लेकर? देखिए, आज बहुत अच्छा इजलास हुआ है और तमाम मुख्तलिफ फिक्र के उलमा किराम आए हुए थे, और इंशाल्लाह यही जरिया बनेगा कि हमारे जो है ना मुल्क में यकजहती और कौमी यकजहती का सोर्स बनेगा। तो आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई, उसकी अलामिया निकली। एक चीज़ आपको ऐड कर दूं, वो नाकाम नहीं हुए हैं, वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जरगे किए हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इवन एफएक्स कमेटी में इसकी तारीफ भी की गई। उसके बाद फायरिंग हो गया सर गाड़ियों के ऊपर। देखो, मैंने उसका नहीं पता कि जी, क्योंकि डिले भी आप करो तो वोट करना पड़ता है, पता करेंगे उसका जरूर।